most respected Mukulji Kanitkar. He's a noted thinker, author, and organization builder. I have had the good fortune of learning a lot from him at the Vivekananda Kendra, Kanyakumari, and also subsequently in the Bharatiya Shikshan Mandal, through which he helped in shaping the National Education Policy 2020. Not many people are aware that he played a critical role in what is the National Education Policy 2020 now. My friend, Professor Minhas, we are really honored that he recently joined barely 2 weeks back? 3 weeks back, and this is his first public engagement. He is the director of the Consortium of Educational Communication, which provides e-content, and also it is known as the Internet University, the only Internet University in the country, if I may call it, Digital University. Professor Bindu Puri, the co-convener of this program, and all the esteemed members, distinguished faculty members from different colleges and universities, scholars, and friends. I don't want to come in between you and Mukulji, because Mukulji is a well-known orator, and I have seen him in many parts of the country, and he is a repository of great knowledge. And we thought that in the second edition of the IHC ICPR study circle, the first edition was addressed by the ICPR member secretary, Mr. Sachidanand, Professor Sanjay Mishra. We thought that nobody would be able to do justice to this topic as much as somebody who has worked at the grassroots can. So I'm sure that, I don't need to talk much about it. You will realize it in the next few minutes. For those who are attending this ICPR IHC study circle for the first time, I just want to give you a brief background. We have set up the Bharat Bodh Kendra about 6 months back. The whole idea is to create a space where our members and researchers can understand Indian philosophy, Indian culture, Indian civilization, Indian belief systems in a dedicated space. So those who are members of the library would certainly have visited that place. We are trying to enrich it with the best of books available on the subject, on Indian knowledge systems. Along with that, we have started a series called the Sanlap series. The Sanlap series is discourse where the whole idea is to go a little deep beyond the superficial understanding that we have. For example, one of the first sessions we have had was on Odissi. I'm sure that many of us watch classical dance performance from time to time. But to understand this dance format, to understand the aesthetics and the therapeutics of Odissi, we need to go a little deeper. So that's why that particular segment was. We also did a workshop on Natya Shastra. We are, as a nation, we communicate a lot. We have been communicating for centuries. And there have been many texts which have laid the foundation for communication in this country. And one of them is Natya Shastra. So it is important to understand Natya Shastra if we want to understand Indian communication tradition. So our effort is constantly, we have recently started the IHC Connect also, through which we are talking about, we had the first meeting where we talked about how media can play a constructive role in building a Viksit Bharat. What should be the role of media? So we are
engaging with these topics. We have also started collaborations with like-minded organizations. For example, on social sector issues, we have a tie-up with Prayas, where habitat-related issues are discussed. We have a tie-up with HEAL Foundation with regard to health issues, which is so important, Swasth Bharat, as a precondition to or a prelude to Viksit Bharat. This apart, we have launched the Utsav series. And I'm sure many of you would have relished the Onam Sadhya, which was organized for the first time here. We also had for the first time the Chhath celebrations at Habitat, where you could savor the flavors of Bihar. We had the Navratra celebrations, we had Christmas, and of course, now we are going to have Lodi, and with the Punjabi Thali in tow. So whether it is food for thought or food for your tummy, the emphasis is on understanding our own roots. Because Indians are global citizens. That is what our ancestors had taught us about Vasudhaiva Kutumbakam, but with strong Indian roots. So friends, on that note, I would like to invite the keynote speaker of the day, but of course, Khushiji will be, giving the introduction. But we would love to have your feedback. After his address, we will have an open Q&A session also. So please do, particularly the research scholars, do take down your notes, and I can assure you that this is going to be a really interesting session. Thank you for braving the winter weather and joining us for this study circle meeting. Thank you so much. It's a great honor to welcome such a wonderful speaker like Mukul Kanitkar ji, and also our chief guest, Professor Manhar, who is here with us today. And this is a lecture series on the relationship between the human and non-human world in Indian philosophy. The India Habitat Center is the most appropriate space for reflections on this theme, but it's also the most appropriate time in the intellectual history of our country for making these inquiries, because we are in a very interesting moment in the history of ideas. We are poised between ideas of progress, moving to an ideal point, which Professor Suresh has just referred to, coming out of colonial stereotypes to talk about Viksit Bharat. And also we are thinking of arriving at what K.C. Bhattacharya famously called Swaraj in ideas, moving out of cultural subjection, which is very different from cultural assimilation. So why is the habitat the appropriate space? Because it's built on the idea of synergy between people and institutions to resolve habitat-related problems. And if you consider the way the world with all the climate problems, this kind of a harmony of synergetic relationships is very, very important. And there is a huge significance of an alternative way of looking at that relationship. Alternative to what? To the Western way, which has dominated this space for a very long time. I would be very out of order if I did not record over here the role that the leadership of this series, the convener, which comes in the person of the leading scholar and journalist, Professor K.G. Suresh, who not only has the deepest ties with India's intellectual past, but he has been a part of an ideational Swaraj through his writing, through his leadership, and through his, whole career in journalism. Indeed, when he became the director of the IHC, as he said, the Bharat Bodh Kendra was integrated with the library and became a specialized center to deepen public understanding of India's civilizational legacy. I need to mention here today the speaker, Shri Mukul Kanitkar ji, who has not only been the organizing secretary of the Bharat
Rashtriya Shikshan Mandal for many years, but a keen scholar of the philosophy of Swami Vivekananda. He has made original contributions towards a contemporary understanding of Indian knowledge tradition, and indeed he kind of embodies the wisdom of India's civilizational legacy. And the theme, to talk about the theme, relationship between the human and non-human world in Indian philosophy. You may say, why do we need to talk about this at all? After all, we have so many departments in universities, and academia has already had so much to say post the pandemic. One answer is we are looking at it entirely from the Western tradition, which has a universal kind of unitary epistemology and looks at it from a very man-centered perspective. And this not only leaves out the diversity of opinions from across the world, but also our own very diverse Indian tradition. And you could say that in the Indian tradition, besides the great diversity of schools, there is a relationship with nature which is not man-centered. So you can look at it from a Sankhya perspective of dualism or an Upanishadic perspective, but you will see that in India, when there is the idea that when you look at things in a multiplicity, then you think of multiplicity as final and you try to gain possession of things. But when you look at it through the infinite soul, then there is the idea of union. And this is really at the heart of our classical tradition and literature. And the non-human world entered into such a close companionship with the human world that ancient Indians living out their daily life was in a way that they could not ever think of their surroundings as separate or as hostile. The view of the world which India has taken can be summed up in the word Sachitanand. The first phase of this word is Sat. The simple fact that things are one, the fact which relates the individual human to all things through the relationship of common existence. Then there's Chit, the fact that we know, which relates us to everything through the relationship of knowledge. And most important, Anand, bliss, that we relate through all things through the relationship of love. This sentiment is not restricted to academic philosophy. You find it in literature. You find it in Shakuntala, where there's a contrast between the court life and the ashram life. You find it in Meghdut. To put together the Indian philosophical perspective, there are 4 points. That in India, nature and the human world are not separate. 2, the non-human world is autonomous and equal with the human world. It's not there to serve human need. 3, human being can draw comfort from nature. This you find beautifully portrayed in Tagore. And 4, the human being has a great debt to repay to the non-human world and to God. So the Indian tradition puts forth a powerful message, one which remains valid today and for the future. And this message is from the forest civilization of India, which is inspired by the ethics of non-attachment and purposelessness of the Gita. That is, the relationship between man and nature should not be guided by utility and just following out of human purposes. It should be joyous in a spirit of absolute equality. That's how we should live with nature. And this, you see, is very different from the West, where if you read Shakespeare, you'll see that, for instance, in Hamlet, there is the scene of the barren heath where there is nature being personified as, some kind of forces of tragedy. And so there is a different attitude in India, in tribal philosophy, in all the diverse schools of Indian philosophy. And you find it continuing in modern Indian philosophy with Tagore, speaking about how nature's festivals are our own holidays. They are invitations to us. The Indian tradition is trying to show us that relationships can be about joy and without purpose. So I am going to end with the message of the forest civilization of India with the words of Rabindranath Tagore. My reverence goes out to the man
who when taking an emergence can receive the water upon his body and upon his mind as well, in a devout spirit. For him the touch of habit has not been able to tarnish the mystery which is in fire and earth, water and food. So this is really what we want to explore in this lecture series. And the most fitting moment is to be able to hear Kanitkar ji today. Thank you so much. धन्यवाद इतने अच्छे परिचय के लिए। आदरणीय केजी सुरेश जी, परीक्षित मनास जी, बिंदु जी, यहाँ उपस्थित आदरणीय बहनों और भाइयों। मैंने हिंदी में शुरू किया तो आपको आश्चर्य लगा होगा। I have nothing against English and I can speak very well in English. I was secretary at Vivekananda International Foundation, so I have spoken in English many times. पर यहाँ पर मुझे लगता है कि सबको हिंदी आती है। तो हमारे एक मित्र है जो एक चिकित्सा मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे जबलपुर में। उन्होंने एक जगह कहा था कि उस भाषा में सहजता होती है समझने में जिस भाषा में आप स्वप्न देखते हो। मेरी मातृभाषा भले ही मराठी है, लेकिन मैं स्वप्न हिंदी में देखता हूँ, इसलिए हिंदी में बात करना चाहता हूँ। और फिर भाषाओं की मर्यादाएं भी होती है। जब अभी बिंदु जी कह रही थी फॉरेस्ट सिविलाइजेशन, आई वॉज रियली परप्लेक्स्ड। इफ इट इज अ सिविलाइजेशन, इट हैज टू डू विथ सिविक, एंड सिविक हैज टू डू विथ सिटीज। If it is forest, how can it be civilization? That is the problem with the language, because it comes with its own baggage. उनकी जो परंपरा है, उनकी जो इतिहास है, उस इतिहास को लेकर के ही भाषा आती है। इसलिए आरण्यक को कैसे अंग्रेजी में बता पाएगी बिंदु जी? आरण्यक है वो। वेद साहित्य का एक तृतीयांश अंश जो आरण्यक है, जो अरण्य से निकला है, इसलिए आरण्यक है, बिकॉज इट इज बॉर्न इन अरण्य। अरण्य में जहां रण नहीं होता, देर इज नो ड्युअलिटी, देर इज नो कॉन्फ्लिक्ट, देर इज सो मच ऑफ हार्मनी। और मतलब मनुष्य और औरों में नहीं, क्योंकि जहां अद्वैत है वहां ह्यूमन और इनह्यूमन कुछ नहीं ना। हम तो सबको ही ह्यूमन बना देते। एक परिवार में भोजन करने गया था, मेरा प्रिय एनेक्डोट है, मैंने कई बार ये प्रसंग बताया है, कुछ लोगों ने सुना होगा। एक परिवार में भोजन करने गया तो 7वीं के बच्चे ने मेरे को पहेली पूछी। तो जैसे उसने कहा, कौशल नाम उसका, तो जैसे कौशल ने कहा मैं पहेली बूझना चाहता हूं, मैंने कहा रुक, तेरे विद्यालय का नाम क्या? तो दिल्ली के सरदार पटेल विद्यालय का छात्र था, सरकारी विद्यालय। हाँ, तो मैंने कहा तेरे शिक्षकों को मेरा प्रणाम है। बोले क्यों? मैंने कहा आज के युग में जिस विद्यालय के बच्चे पहेली बूझते हैं वहां पर शिक्षा जीवित है। क्योंकि पहेली बूझना और अंत्याक्षरी ये मनोरंजन तो प्री मोबाइल पी टेलीविजन कालखंड का है। हमारे बचपन में बत्ती गुल हो जाती थी तो या तो अंताक्षरी खेलते थे या पहेली बूझते थे। मेरे आयु के लोग जान सकते, युवा इस आनंद को नहीं ले सकते, क्योंकि आजकल बिजली गुल नहीं होती, होती है तो इन्वर्टर और जनरेटर चालू हो जाते हैं, प्रकृति की ऐसी तैसी। तो इसलिए उस आनंद को लिए हुए हम लोग आज भी है आपके बीच में। तो उसने पहेली बूझने को कहा, तो पहला आनंद तो यही था कि शिक्षा जीवित है। और दूसरी पहेली उसने इतनी अद्भुत बूझी, उसने कहा, मुझे पूछा गाय की बहन कौन? देखिए अभी इनह्यूमन कहाँ रहा, गाय इनह्यूमन नहीं रही, क्योंकि बहन पूछ रहा है। संबंध तो मनुष्य का गुण है, तो संबंध स्थापित कर रहा है वो। मैंने कहा बहन, गाय की बहन, तो आपके भी मन में पहला उत्तर आया ही होगा भैंस। मेरे मुंह से निकला है। उसने कहा नहीं आप कुछ भी बोलते हो। अरे मैंने कहा दोनों दूध देती है, तो बोले दूध तो बकरी भी देती है। मैंने कहा तो बकरी है? बोले नहीं नहीं वो भी नहीं। बोले लॉजिक होना चाहिए ना किसी बात में। मैंने कहा हाँ ये बात तो ठीक है, उत्तर में लॉजिक होना चाहिए। फिर जब मैंने कहा हार गया तो वो बालक खुश हो गया। पहेली बूझने वाला तभी खुश होता है जब सामने वाला हार गया मान जाए, और पहेली का उत्तर वही सही होता है जो पहेली वाला बताता है, बाकी सारे उत्तर तो गलत ही होते हैं। तो उसने, जब मैंने कहा हार गया, तो उसने माँ को आवाज लगाई, माँ मुकुल भैया हार गए।
इतना बड़ा परिचय दिया तो आप समझ सकते हो कितना आनंद हुआ होगा उसको। ऐसे विद्वान व्यक्ति को मैंने हरा दिया। मैंने पूछा बेटा आप उत्तर बता, बिना उत्तर बताए तेरा और उत्तर का लॉजिक बताए वो पहेली तो पूरी नहीं होगी। तो उसने उत्तर दिया गाय की बहन बिल्ली। मैंने कहा तूने जूलॉजी की ऐसी तैसी कर दी। मैंने कहा जितना प्राणी शास्त्र मैंने पढ़ा है ये बोवाइन फैमिली की है, वो फेलाइन फैमिली की है, दोनों की फैमिली अलग, बहनें कैसे हो सकती है? बोले वो मुझे नहीं पता, गाय हमारी माँ है, बिल्ली मौसी है। तो मौसी तो माँ की बहन होती है। ये भारत बोध है जहां हैबिटेट is not relation between human and inhuman. Yeah, everything is humanized, everything is personalized, everything is personified. इसलिए बद्रीनाथ जी को कंबल उड़ाया जाता है, रात को शयन करते समय नाइट ड्रेस पहनाई जाती है, और जहाँ बहुत गर्मी होती है वहाँ भगवान को भी एसी लगाया जाता है। बिकॉज हियर वी पर्सनलाइज डिविनिटी, हियर वी ह्यूमनाइज डिविनिटी, हियर वी ह्यूमनाइज नेचर। ये भारत बोध है। इसलिए जब पहली बार ये सुना कि केजी सुरेश जी इंडिया हैबिटेट सेंटर के डायरेक्टर बन गए तो मुझे आश्चर्य हुआ, ये वहाँ क्या करेंगे? जहाँ जाने में डर लगता है। जहाँ जाने ये इंडिया हैबिटेट सेंटर और इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की ये ख्याति थी कि सामान्य व्यक्ति को वहाँ जाने में डर लगता है। आप एलिट नहीं हो तो वहाँ जा नहीं सकते। ऐसे ये हमारे दिल्ली में ये माहौल है। यहाँ बैठे हुए कई लोग उससे सहमत होंगे। कई लोग आज पहली बार यहाँ आए होंगे, मेरा चेहरा देख करके हिम्मत की होगी इंडिया हैबिटेट सेंटर में जाने की। और जब पिछली बार इनको मिला यहाँ पर, मैं किसी विवाह में ही आया था और वहाँ से मिलने इनको आया तो इन्होंने बताया यहाँ भारत बोध शुरू कर दिया। मैंने कहा अब हैबिटेट हो रहा है। 2017 में हमने भारत बोध नाम से अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की थी इग्नू में। प्रणब मुखर्जी जी ने उद्घाटन किया था, तब वो राष्ट्रपति थे और भारतीय शिक्षण मंडल के कार्यक्रम में आए थे। उसमें एक अद्भुत वक्ता आए थे, दुर्भाग्य से अब हमारे लोगों के बीच में नहीं है, डॉक्टर BM हेगड़े, एलोपैथ, बहुत बड़े जाने माने। और BM हेगड़े जी को जब उस भारत बोध में बुलाया गया, मैंने पूछा आप किस विषय पर बोलोगे, तो उन्होंने कहा मैं धर्म संस्कृति पर बोलूंगा। एन एलोपैथ, डॉक्टर, हार्ट स्पेशलिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट स्पीकिंग ऑन धर्म एंड संस्कृति। मुझे लगा क्या बोलेंगे। उन्होंने बात ही यहां से शुरू की कि सारा का सारा चिकित्सा शास्त्र, आयुर्विज्ञान, द होल मेडिकल साइंस इज नथिंग बट धर्म एंड संस्कृति। बोले शरीर के प्रत्येक ऑर्गन का एक धर्म है, शरीर की प्रत्येक कोशिका का एक धर्म है, शरीर के प्रत्येक ऊतक का, ऑर्गन, टिश्यू, सेल, प्रत्येक का अपना अपना धर्म है। यानी उसकी संरचना है, कंपोजिशन है, और उसका फंक्शन है, ड्यूटी है, उसका कर्तव्य है। यदि शरीर का प्रत्येक कोशिका अपने धर्म का पालन करे तो शरीर स्वस्थ रहता है, और उस धर्म का पालन करने के लिए उस शरीर का वातावरण ठीक होना चाहिए। वो वातावरण है संस्कृति। संस्कृति ठीक होती है तो धर्म का पालन होता है। ये शरीर शास्त्र अद्भुत उन्होंने सिखाया। तो मुझे लगता है हैबिटेट यानी वही ना, जिस परिस्थिति में हम रहते हैं। तो जो परिस्थिति, जो संस्कृति, वह परिस्थिति यदि संस्कारवान हो, यानी संबंधों को पहचानने वाली हो, वन विच रिकॉग्नाइजेस रिलेशन। यदि आपका एनवायरमेंट, यदि आपकी पारिस्थितिकी, यदि आपका आस पड़ोस संस्कारवान हो, यानी संस्कृति स्थापित हो, तो आप अपने धर्म का, कर्तव्य का पालन करके
आनंद की अनुभूति कर सकते हैं, ये सच्चिदानंद है। ICPR के मेंबर सेक्रेटरी ये भारतीय फिलॉसफी है सच्चिदानंद। ये जीवन है, ये सत्य है जीवन का। ये केवल भारत के लिए नहीं है, भारत में पैदा हुआ इसलिए इसको भारतीय कह दो, पर ये तो यूनिवर्सल है ना, ये तो सार्वभौमिक सार्वजनीन है, ये सबकी चेतना का अंग है। इसलिए यहां पर भारत बोध केंद्र का स्थापित होना, इसलिए मैंने कहा अब रियल हैबिटेट हो गया, अब परिस्थिति का संस्कार प्रारंभ हो गया। तो इसलिए ये भारत पारिस्थितिकी केंद्र आपका सही अर्थ में संस्कृति केंद्र बना, तो ये धर्म की उड़ान भरेगा। इसलिए जब मुझे पूछा क्या आप विषय लोगे, तो मैंने ये विषय लिया। परस्पर विरोधी लगते हैं ना, उड़ान और जड़े। उड़ान तो ऊपर, जड़े तो नीचे। पर जड़े जितनी गहरी होगी, उड़ान उतनी अधिक समर्थ होगी, उड़ान उतनी अधिक सहज होगी। ये केवल मैं नहीं कह रहा, ये सारा विश्व आज समझ रहा है। उड़ान तो भारत भर रहा है, किसी भी अर्थ में ले लो। बिल्कुल आधुनिक परिमाणों को भी लेना है तो जीडीपी में भी नंबर 3 हो गया, 4 हो गया, जो भी चल रहा है। जल्दी 2 हो जाएगा, पॉपुलेशन में 1 हो ही गया ना कौन बचा पाया, कौन रोक पाया। तो वहाँ भी जीडीपी में भी हो जाएंगे, और भी बाकी सारे पैरामीटर्स ले लो, उसमें भी चले जाएंगे। मतलब इकोनॉमिक्स ले लो तो उड़ान भर रहे दिख ही रहा है, टेक्नोलॉजी ले लो, तंत्र ज्ञान ले लो, उड़ान भरी रहे। विश्व के अनेक देशों के पास नहीं है उतना, हमारे यहाँ डिजिटलाइजेशन हो गया। जैम ट्रिनिटी की बात होती है। जब मुझे मेरे मित्रों से पता चला, यूनाइटेड स्टेट्स में रहने वाले, यूएसए में रहने वाले, कि उनको जब वैक्सीन मिली तो उस वैक्सीन का सर्टिफिकेट एक कोरी चिट के ऊपर पेंसिल से लिख करके दिया गया था। मैंने कहा मेरा तो मोबाइल में है, तो उन्होंने कहा नहीं हमारा मोबाइल में नहीं है। तब पता चला कि कुछ बात में तो हम आगे हैं। दुनिया के सबसे कर्जदार देश से तो हम दुनिया कुछ और बात में भी आगे है ना। वो जीडीपी में नंबर 1 है, उससे ज़्यादा नंबर 1 कर्जे में है। $31 ट्रिलियन का कर्जा है, $28 ट्रिलियन का जीडीपी है अमेरिका का। मैं मतलब जो है वो बता रहा हूँ। मेरे को उनसे, डोनाल्ड ट्रंप से कोई दुश्मनी नहीं है। बेचारा अपने देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। आई एम आई लाइक हिम वेरी मच। वो अमेरिका के लिए बहुत अच्छा काम। उससे ज़्यादा ईमानदार आदमी कौन जो बोले मेक अमेरिका ग्रेट अगेन? उससे ज़्यादा सत्यनिष्ठ व्यक्ति कौन जो मान रहा है कि अभी ग्रेट नहीं है? अभी तक तो किसी अमेरिकी प्रेसिडेंट ने ईमानदारी से माना नहीं कि ग्रेट नहीं है। उसने माना मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यानी था, बनेगा, अभी नहीं है। इतना ईमानदार आदमी है। ऐसे आदमी को आप लोग गलत कहते हो कोई लोग, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता। हमारे पर टैरिफ लगा के उसने बहुत बड़ा कल्याण किया है। जब 1998 में हमने पहली बार चमत्कार दिखाया था टेक्नोलॉजी का, 11 मई 1998 को, 11 मई 1998, क्या हुआ था? तब मैं राजस्थान में ही था। मतलब मेरा कोई हाथ नहीं था उसमें, लेकिन मैं वहाँ से केवल 180 किलोमीटर दूर, जोधपुर मेरा केंद्र था उस समय 98 में, और पोखरण में धूम हुआ था और सारी दुनिया हिल गई थी। और केवल इसलिए हिल नहीं गई थी कि भारत में बम फोड़ा, इसलिए हिल गई थी कि 3,500 वैज्ञानिक लग गए, लेकिन एक भी नहीं खरीदा जा सका और सीआईए को पता नहीं चला। उसी दिन रात को सीआईए के डायरेक्टर को बदल देना पड़ा। अभी मदुरो और उसकी बीबी को उठा के ले गए क्योंकि सारे गार्ड बिक गए। इलीट गार्ड, उसके पर्सनली पिक्ड गार्ड, जिनका उससे संबंध था, रक्त का संबंध था, वो भी बिक गए। इसलिए बिना किसी रक्तपात के मदुरो को उठा लिया गया और हमारे 3600 वैज्ञानिकों में से एक भी नहीं बिका। और वो सारे 3600 वैज्ञानिक ऐसे थे, यदि भारत को छोड़ करके विदेश में जाते तो इसरो या डीआरडीओ जितनी सैलरी देता था उससे 36 गुना सैलरी मिल सकती थी, उसके बावजूद नहीं बिके। ये डीप रूट्स है, ये गहरी जड़ें होती है, जहां पर आप अपनी चेतना से गाइड होते हैं। आजकल सब जगह लिखा होता है ना, जहां जाओ वहां लिखा होता है यू आर अंडर सीसीटीवी सर्विलांस।
और फिर आप थोड़ा सा देख लेते हो ठीक ठाक है कि नहीं। जब बाहर के कैमरे से इतने सचेत हो जाते हो, भारत का सही भारत बोध है, अंदर का सीसीटीवी चालू है कि नहीं है। उन 3600 लोगों का अंदर का सीसीटीवी चालू था, इसलिए बिके नहीं। बिकता वो नहीं जिसका अंदर का सीसीटीवी चालू होता है। जो उस सर्विलांस में रहे वही ऊंची बढ़ान भर सकता है। तो तब भी हमारे ऊपर सैंक्शन लगा दिए थे 3 साल के लिए। 1998 से लेकर 2001 तक भारत के ऊपर केवल आर्थिक सैंक्शन नहीं थे, टेक्नोलॉजिकल सैंक्शन थे। क्रायोजेनिक इंजन फ्रांस देने वाला था, उसको मना कर दिया था। आई कैन गो ऑन एंड ऑन। और उन्हीं 3 वर्षों में भारत की सर्वाधिक आर्थिक प्रगति हुई है, क्योंकि हमारा इनर डोमेस्टिक पोटेंशियल उठ करके खड़ा हो गया। और थोड़ा सा 50-60% टैरिफ लगा ले तो भारत के व्यापारी और खड़े हो जाएंगे। उड़ान तो भर ही रहे हैं, हम हर क्षेत्र में भर रहे हैं। यूपीआई आज दुनिया के 40 देशों ने ले लिया। उड़ान की बातें बताने की आवश्यकता नहीं है, हम सब लोग उसको अनुभव कर रहे हैं। कोरोना के समय में कार में गुवाहाटी गया और नागपुर से गुवाहाटी तक 6000 किलोमीटर जाकर के रास्ता घूम करके आया। और मैं तो 1999 में पाराद्वीप में भी जीप लेकर के गया था। जोधपुर से लेकर पाराद्वीप उड़ीसा में जीप लेकर के गया था। तो इसलिए रास्तों की स्थिति 1999 में भी मैंने देखी थी और 2019 में भी देखी। 20 साल में क्या बदल गया वो देखा मैंने, क्या परिवर्तन हो गया। ये भारत की उड़ान है, ये भारत की युवा शक्ति की चेतना की उड़ान है। इतना ही नहीं, फॉरेस्ट कवर बदल गया। मैंने बीकानेर को मेरी आंखों के सामने हरा भरा होते हुए देखा है। बीकानेर का रेनफॉल बढ़ते हुए देखा है। आप गूगल अर्थ पे जाइए और भारत के पिछले 20 वर्षों के अलग अलग स्नैपशॉट लीजिए। भारत का फॉरेस्ट कवर बढ़ा है, अरण्य बढ़ा। इसलिए हर क्षेत्र में उड़ान है। लेकिन केवल उड़ान से काम नहीं चलेगा भाई। सबसे बड़ी उड़ान तो उस दिन हुई भारत माता की जिस दिन वो जगत गुरु बन गई। बनेगी नहीं बोला मैंने, पास्ट टेंस में बोल रहा हूं। बन गई, ऑलरेडी बन गई। आपको नहीं पता? इन मीडिया वालों ने ब्रेकिंग न्यूज़ दी नहीं ना, इसलिए नहीं पता। मैं देता हूं ब्रेकिंग न्यूज़ और डेट बताता हूं किस डेट को भारत माता जगत गुरु बन गई। 21 जून 2015 को भारत माता जगत गुरु बन गई। क्या हुआ था 21 जून 2015 को? 193 कंट्रीज, 193 देशों के नागरिकों ने वहां की भूमि पर नाक रगड़ करके भारत माता को वंदन किया था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे। बहरीन में, कुवैत में, इंडोनेशिया में, टाइम्स स्क्वायर में, ट्रफाल्गर स्क्वायर में। क्योंकि हमारे यहाँ केवल समृद्धि को उड़ान नहीं माना जाता, समृद्धि और संस्कृति साथ साथ चलती है, तब उसको राइजिंग कहते हैं। संस्कृति को बेचकर समृद्धि नहीं, संस्कृति को बेचकर समृद्धि का मार्ग पश्चिम ने अपनाया। इसलिए आज परेशान है। आज जितनी जनसंख्या है उससे अधिक घर बांध लिए, क्योंकि एक्सपेंडिचर कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमिक्स के आधार पर जीडीपी बढ़ाने की स्थिति। आज दिक्कत है, फैमिली नहीं। डॉक्टर डेविड ब्लैंकेनहॉर्न नाम के सोशियोलॉजिस्ट ने पूरे अमेरिका का एक बहुत बड़ा सर्वेक्षण किया। इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक अ सेंसस टाइप ऑफ सर्वे, सच ए लार्ज सैंपल ही टुक। और उसने उस सर्वे के आधार पर पुस्तक लिखी और पुस्तक को नाम दिया, डॉक्टर डेविड ब्लैंकेनहॉर्न की किताब है, देख लेना। पुस्तक का नाम है फादरलेस अमेरिका। 1998 में डॉक्टर डेविड ब्लैंकेनहॉर्न कह रहे कि 46% ऑफ द एडल्ट अमेरिकन्स आइदर डू नॉट हैव फादर और डू नॉट नो हु देयर फादर इज। पिता विहीन समाज, पिता विहीन समाज का निर्माण हो गया। विद्यालय के अंदर क्रश निकालने पड़े, पालना घर निकालने पड़े। यह स्थिति बन गई क्योंकि समाज और संस्कृति को बेचकर समृद्धि लाए। हमारे यहां वो नहीं है, हमारे यहां विचार ही समुत्कर्ष का है, शब्द ही है समुत्कर्ष, सम्यक उत्कर्ष। द राइजिंग, उत्कर्ष, राइजिंग का एग्जैक्ट ट्रांसलेशन उत्कर्ष। उत्कर्ष समान रूप से होना चाहिए, जितना बाहरी उतना आंतरिक होना चाहिए। बाहर और अंदर से एक साथ ऊपर उठेंगे तब चलेगा।
क्योंकि आपके एक्सटर्नल पैरामीटर से लो तो मैं यहां खड़े होने के लायक ही नहीं हूं। डिग्री मेरे पास केवल बैचलर्स की है, LLB किया मैंने, उसके बाद मास्टर्स भी नहीं किया। आप में से अनेक PhD किए हुए बैठे हैं यहाँ पर, तो आपसे कम पढ़ा लिखा हूँ। आप सबके सामने पढ़ाई लिखाई कोई कमाई तो ढेले भर की नहीं है। प्रचारक कुछ कमाता ही नहीं है, नो बैंक बैलेंस, नो प्रॉपर्टी, आई डोंट ओन एनी व्हीकल, आई डोंट हैव एनी प्रॉपर्टी, मेरा कोई घर नहीं, कोई जमीन नहीं, कोई जायदाद नहीं, और तीसरा मेरा कोई खर्चा नहीं। हमको व्यय पत्रक देते हैं प्रचारक लोग, तो मेरा व्यय पत्रक महीने का 500 रुपये, 200 रुपये, किसी कभी 400 रुपये। मतलब कभी प्रवास में अकेले चाय पीनी पड़ी तो उसी का तो खर्च है, नहीं तो फिर परीक्षित जी पिला देते, मतलब जो साथ में होता है वही पिलाता है, तो मेरा तो खर्चा होता नहीं ढेले भर का। तो किसी भी मॉडर्न पैरामीटर में मेरा तो कोई उत्कर्ष हुआ ही नहीं। ये समुत्कर्ष है प्रभु, अंदर और बाहर दोनों एक साथ बढ़ने चाहिए। तो ये केवल व्यक्ति का ही नहीं, समाज का भी, संस्कृति का भी। इसलिए हमारे यहाँ उत्कर्ष की ये, राइजिंग की ये डेफिनेशन है। इसलिए डीपर द रूट्स इजियर द राइजिंग। जितना गहरे जाओगे अपने अंदर, अपने आप को जितना जानोगे, जितने अपने प्रति स्थिर हो जाओगे, मैं, मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरे संस्कृति, मेरे संस्कार, मेरा इतिहास, मेरे पूर्वज, जितना अंदर जाओगे उतनी उड़ान अधिक भरेगी। इसलिए इतिहास का अध्ययन इसलिए नहीं करना कि यह सिद्ध करना है कि भारत महान था, क्योंकि कितना भी सिद्ध कर लो वो लोग नहीं मानेंगे जिनको नहीं मानना है, और जो लोग मानते हैं उनके लिए सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए इतिहास का अध्ययन तो केवल इसलिए करना है कि उससे भविष्य के लिए कोई मार्ग मिलता है क्या। इसलिए विषय केवल पास्ट टेंस का नहीं है, भारत बोध केवल पास्ट टेंस का नहीं है। भारत बोध ये फ्यूचरिस्टिक विषय है, यह भविष्योन्मुखी विचार है। सारे विश्व का भविष्य, मानवता का भविष्य, समूची सृष्टि का भविष्य ठीक करना है तो भारत बोध विश्व में नंबर 1 बनना आवश्यक है। तभी ये बिल्ली मौसी वाली संस्कृति वापस आएगी, तभी संबंधों की संस्कृति वापस आएगी, तभी प्रदूषण बचेगा, जब प्रकृति अपनी मां बनेगी। अभी कहते हैं, मानते नहीं है। मेरे को तो माँ ने बचपन में सिखा दिया था और आज भी करता हूँ कि सुबह उठने से, बिस्तर से नीचे उतरने से पहले क्षमा मांगना बेटा, कि अब हे धरती माँ, अब मैं उतरूंगा, मेरे पैरों से तेरा स्पर्श होगा, तू मेरी माँ है, तूने मुझे सब कुछ दिया है, धारण करती है इसलिए तू धरती है। हमको धरती है ना, इसलिए वो धरती है, वो ना धरे तो हम अधर हो जाए। ऐसी धरती पर मैं अब चरण रखूंगा, पाद स्पर्शम क्षमस्व में, क्षमा कर मां मुझे। ये संवेदना यदि हर पुत्र में जग जाए तो AQI के लिए किसी दूसरे के विरुद्ध आंदोलन नहीं करना पड़ेगा, अपने प्रति जानना पड़ेगा कि है क्या ये संवेदना है क्या प्रकृति के प्रति। ये भारत बोध है जो विश्व को देना है। इसलिए डीपर द रूट्स। फ्रिट्ज ऑफ काबरा की बात बता करके समाप्त करता हूं, फिर आपके कुछ प्रश्न होंगे तो आगे बात करेंगे। गहराई पे जाने के लिए, जड़ों में जाने के लिए केवल इतिहास को पढ़ने की बात नहीं है, तत्व को समझना गहराई पे जाना है, तत्व को समझना, बात के रहस्य को समझना, सिद्धांत को समझना। यू हैव टू गो टू द प्रिंसिपल। उसके केवल बाहरी आडंबर पे जाकर के नहीं चलेगा, कथा सुन करके नहीं चलेगा, उस कथा के रहस्य को समझना पड़ेगा, तब डीपर जाएंगे, तब गहराई में जाएंगे, तब रस पाएंगे। रस का अर्थ ही होता है जो अंदर छुपा हुआ है, वही आनंद देता है, रस ही आनंद देता है। इसलिए वो रस तक पहुंचना, डीपर जाना है। यही फ्रिट्ज ऑफ काबरा है जिसने वैज्ञानिकों के
बहुत अच्छे अच्छे इंटरव्यू लिए। अनटोल्ड विजडम नाम की उसकी पुस्तक है, उसमें बड़े बड़े फिजिसिस्ट के उसने इंटरव्यू लिए। ये फ्रिट्जॉफ कापरा भारत से प्रभावित था, भारत में खूब रहता था, गुरुदेव का मित्र था, शांति निकेतन बहुत वर्षों तक रहा और पूरे विश्व में घूमता था। ही वॉज अ फिजिसिस्ट, फिजिक्स का व्यक्ति था। सबसे पहली उसकी पुस्तक जो प्रसिद्ध हुई थी ताओ ऑफ फिजिक्स। ताओ ऑफ फिजिक्स में उसने बुद्धिस्ट फिलॉसफी के साथ फिजिक्स के सिद्धांतों को सब कंपेयर किया था। उसके बाद उसकी पुस्तक आई टर्निंग पॉइंट। फिर उसकी तीसरी पुस्तक जो अद्भुत पुस्तक है, आपने, मैं जानबूझ के पुस्तकों के नाम बता रहा हूं कि आप पढ़िए उन पुस्तकों को, अद्भुत पुस्तक, रिसर्चर यदि यहाँ बैठे तो, वेब ऑफ लाइफ, अद्भुत किताब है। और जो मैंने उसके साइंटिस्ट के इंटरव्यू की किताब बताई, वो किताब का नाम है अनटोल्ड विजडम। उस अनटोल्ड विजडम में पहला इंटरव्यू है हेजनबर्ग का। हेजनबर्ग जिसने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया, हेजनबर्ग जिसके कारण क्वांटम फिजिक्स आया, हेजनबर्ग जिसके कारण इलेक्ट्रॉनिक्स आया, सारे के सारे फिजिक्स को एक जो नूतन, आज आपके जेब में मोबाइल है, सेलफोन के टावर है, तो उसका श्रेय हेजनबर्ग को जाता है। उसने पहली बार बताया कि पराकणों के स्तरों पर, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के स्तरों पर न्यूटन के लॉ लागू नहीं होते। न्यूटन का जो स्थिति और गति का, रिलेटिविटी का नियम है कि एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति रफ्तार की गति से पूर्व दिशा में चल रही है, दिल्ली से निकली तो घंटे भर बाद कहां पहुंचेगी बता सकते हैं। वो कहता है ये बात कणों पे लागू नहीं होती। उसने ये शोध कर लिया था 1928 में, 1928 में। द पेपर वॉज पब्लिश्ड इन 1930। 2 साल अपने ही शोध को प्रकाशित करने की हिम्मत हेजनबर्ग को नहीं आई थी, क्योंकि उसको गैलीलियो स्मरण हुआ था, उसको कोपरनिकस स्मरण हुआ था कि प्रस्थापित के विरुद्ध का विज्ञान बता दो तो क्या होता है। वो कहता है, फ्रिट्जॉफ कापरा को हेजनबर्ग कहता है, आई डिड नॉट डेयर टू पब्लिश माई रिसर्च एंड माई कंक्लूजन्स बिकॉज आई थॉट द साइंटिस्ट वुड कॉल मी क्रेजी। 1929 में गुरुदेव के निमंत्रण पर हेजनबर्ग भारत में आया, शांति निकेतन में रहा। 7 दिन शांति निकेतन में रह करके आरण्य का उपनिषदों का अध्ययन किया, अरण्य में पैदा हुए उपनिषदों का गुरुदेव के साथ स्वाध्याय किया। और उसके बाद वो फ्रिट्जॉफ कापरा को कहता है, देन आई गॉट द करेज टू पब्लिश माई पेपर आफ्टर लर्निंग अबाउट उपनिषद। तो फ्रिट्जॉफ कापरा ने पूछा, उपनिषद में तुमको ये सिद्धांत मिले क्या? तो बोले नहीं, वो तो मुझे बताया था कि कणाद के वैशेषिक में मिलेगा, लेकिन उसका मैं अध्ययन नहीं कर पाया। आई डोंट अंडरस्टैंड संस्कृत एंड आई कुड नॉट गेट अ स्कॉलर ऑफ कणाद वैशेषिक दर्शन, क्योंकि ये न्याय वालों ने वैशेषिक को खा लिया, वो अलग विषय, संस्कृत वालों के साथ कभी चर्चा करेंगे। गौतम के भक्तों ने और कणाद के भक्तों को कब्जा कर लिया था, अभी वापस जगाया हमने गुरुकुल प्रकल्प में, वो अलग विषय। उसने कहा वो तो मैंने नहीं पढ़ा, किंतु मुझे यह हिम्मत इसलिए मिली because here I got more crazier ideas than my own. Here are more crazier people, उपनिषद को देख करके कहा। और उसके बाद उसने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का पेपर छापा। तो आज जो आपके जेब में मोबाइल है उसका श्रेय भी भारत को जाता है। ये बताने के लिए नहीं कहा मैंने, ये कथा सुनाई। उसी फ्रिट्जॉफ कापरा के वेब ऑफ लाइफ में बड़ा सुंदर प्रारंभ वो करता है। द फर्स्ट पेज ऑफ द बुक आस्क द रीडर टू इमेजिन। वो कहता है कि आप थोड़ी कल्पना कीजिए। क्या कल्पना कीजिए? आप जब बोल रही थी तब मुझे वेब ऑफ लाइफ याद आई। वो कहता है कल्पना कीजिए कि आप किसी अरण्य में हैं, किसी फॉरेस्ट में हैं, और चारों तरफ क्या दिखाई देता है। और वो अद्भुत वर्णन करता है, तरह तरह के वृक्ष, छोटे छोटे तृण, छोटे छोटे घास के जैसे तिनके, उसके ऊपर छोटे छोटे पौधे, पादप, उससे बड़े वृक्ष, फिर गगनचुंबी वृक्ष जिनकी और शाखाओं के कारण और सूर्य का प्रकाश जमीन पर ना आ सके ऐसा अंधेरा। कितने प्रकार की विविधता के वृक्ष, कितने प्रकार के पुष्प, कितने रंग, हरे रंग के, सो मेनी शेड्स ऑफ ग्रीन। वर्णन करते जाता है विविधता का, अद्भुत विविधता, द डाइवर्सिटी ऑफ यूनिवर्स, द डाइवर्सिटी ऑफ नेचर। और फिर फ्रिट्जॉफ कापरा कहता है, अब आप कल्पना करो कि इसी जंगल को, इसी अरण्य को आप पृथ्वी के भीतर 20 फुट नीचे से देख रहे हैं। धरती के अंदर से 20 फीट नीचे से क्या दिखाई देगा? रूट्स एंड रूट्स एंड रूट्स एवरीवेयर, इंट्वाइंड इन ईच अदर, अ वेब ऑफ लाइफ। ये उसकी पुस्तक का नाम है, वेब ऑफ लाइफ।
बाहर की समस्त विविधता के अंतर्निहित एकत्व को पहचानना, जड़ों में जाना है। ऊपर का वो गगनचुंबी वृक्ष हो या छोटा सा घास का पत्ता, उसको जीवन रस उसी जड़ों से मिल रहा था जो एक दूसरे के साथ गूंथे हुए थे। इस समग्र विविधता के मध्य विभिन्न भाषा, विभिन्न खान पान, विभिन्न चेहरा मोहरा, विभिन्न रूप रंग, विभिन्न उपासनाएं, विभिन्न दर्शन, विभिन्न जीवन शैली, इस समस्त विविधता के मध्य जो एकत्व है, उस एकत्व के साथ संपर्क का अर्थ है डीपर द रूट्स। उन गहरी जड़ों के साथ जितना हम जुड़ेंगे, उतनी हमारी बाहरी उड़ान उतनी ही भव्य होगी। इसी प्रार्थना के साथ अपनी वाणी को विराम दें। Thank you. Mitro, Dronacharya has just spoken. And I was smiling if you would look at the videos all through that. This is a very tough task now. So kindly don't compare me with him. मैं सबसे ये बोलूँगा, मुझे उनके साथ कंपेयर नहीं करिएगा। और सर, द्रोणाचार्य का भी कोई भी इनकम नहीं थी, कुछ नहीं था, बड़े बड़े राजा उनके आगे नतमस्तक होते थे। तो हम भी आपके आगे नतमस्तक हैं। I literally don't, I'm short of words. What can I present after he has spoken? But just few thoughts. Please excuse me if I'm not on the right track, because I know you all must be thinking about him and what all he has spoken about. I wish, and all of us must be wishing also, that we might get some part of his skills also. But unfortunately, we'll keep on learning for the days to come. The first aspect, obviously, we have been talking about Bharat Bhot. I'm going to talk about the fact that what is it actually going to provide us with, and why should we be indulging into it? हमें क्यों करना है? और पहली important aspect है, अगर हम इसमें आगे बढ़ेंगे, the very important aspect which youngsters of today's age need, the mobile era age need, that is adaptability. अगर आपको हर situation में आगे बढ़ना है इस दुनिया में, अगर आपको हर situation में कुछ ना कुछ अचीव करना है, adaptability is going to be the key for every youngster. So I would suggest do more and more research, work towards such perspectives that make you adaptable to any conditions that exist around us. America जितने मर्जी टैरिफ लगवा ले, anything that happens around the globe, if you can change and if you can make that as a positive aspect for you, those 3 years that Mukul Bhai Sahab was talking about, Russia cancelled the cryogenic deal. And India, that is when the basis for ISRO and DRDO was built up. So that adaptability, you all youngsters, the young scholars sitting over here, have to work about. Bharat Bhot for inclusivity. Let's take everybody along. And that is what our deep roots also talk about. We have to take everybody along with us if we need to really grow. If we need our economy to be real sense number one, not an economy which is number one but is debt-ridden. We don't want that. We would not like to have an economy like that. So inclusivity, take everybody along. Every aspect of our universe, that means the country that we are residing in, the place that we are living in, has to grow in a very positive, progressive manner, in an effective and efficient manner. So that inclusivity is a very important aspect. And that is what, in today's world, some of us are lacking. And that is what I would strongly suggest that you all should look towards. Bharat Bodh for universalism. An important aspect that I keep referring towards is that if we want to be universally acclaimed, recognized for our work, we need to understand where we come from. What our history is all about, what our culture is all about. Universalism is the basis for our culture, and that has to be built up. उसे समझना बहुत ज़रूरी है. भाई साहब ने अभी बात की अपनी माता श्री की, उन्होंने कैसे उनको धरती के बारे में समझाया और कैसे कहा, ये सब चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है. I'll not go that much deeper because I don't have that much knowledge also.
But the basic fact is that we need to build it up. If you are able to do all these things, there is going to be lots and lots of opportunity. Bharat both for next generation opportunities. How we can grow, how we can build up, how we can have things in such a manner, and we should see opportunities in different areas, not the traditional ones that we have been looking at. And the way the India is shaping up and the way it has shaped up in past 2 decades, the fact is that we can see every field growing, opportunities coming in everything. During my generation also, everybody was thinking of only 2 areas, medical, medicine or engineering. But there were few who were trying to indulge into some different fields. And today we look at it and we see that a lot of opportunities exist. Media is one of those things. A lot of opportunities exist and they have been growing in a very, very important aspect. The last thing that I want, Bharat both for empathy. Have empathy for the people around you. I'm not saying sympathy. Have empathy, because I come from a state, I come from a region where we have seen so many difficult times. Try to put yourself in other people's shoes and try to understand what they are going through, the pain that they are going through. So have empathy for your fellow Indians, for fellow human beings, so that we build up a very good society. We build up a progressive society. We build up a growth-oriented society, which actually is an icon. I don't want India to be number 1 just for the sake of it. As US or other developed countries keep talking about that we are first in this and first in that. We want to be number 1 in empathy. We want to be that society which takes care of everybody. But mind it, country first. That's the most important aspect. Coming from a region, I was just sharing with ma'am over here, that हम तो एक फ्रंटियर रीजन से आते हैं, जैसे कि अफगानिस्तान एक टाइम पे फ्रंटियर था, तो वहाँ पे फ्रंटियर गांधी थे हमारे. So we come from that region. But the fact is, understand the pain of other people. The day you start understanding that, that is actually going to be making us real sense number 1 in this world. I don't have much words because I really, literally, I'm short of words, and I'm still analyzing his words and his lecture. And obviously, he's an icon in his field. And we can't be compared to it. And KG Suresh sir has not done the right thing by making me chief guest in such a difficult situation that I had to speak over here. But these were my few cents, few thoughts, मेरे कुछ विचार जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ. बहुत सारा कुछ लिखा था, बहुत सारा कुछ बनाया था, but I'm not going to talk about that because that is immaterial right in front of him. But the fact is that try to follow some of the things that I talked about, because that is something which I really feel once every Indian starts doing it, we will real sense be number 1 in the world, and we will be leading this world. This is how we were leading the world once, and this is how we are going to again lead the world one. Jai Hind. Namaskar.